पाक में अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लीन बोल्ड में। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एशिया का ताज भारत वर्सेस पाक की आखिरकार भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस मैच का। देखा आपने किस तरीके से जो दुबई में फैंस हैं वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर ये कल के मैच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन इसके पहले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रोहित ने पिच को लेकर के भी बात की है, क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए ये तो टाइम ही बताएगा। अभी तक हमने पिच कल ही देखा था, उस पर थोड़ा सा घास रखा हुआ था तो अभी आज पता नहीं पिच कैसे क्या किया हुआ है क्यूरेटर ने पिच के ऊपर, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से एट द मोमेंट कि ये स्पिन डोमिनेटेड टूर्नामेंट होगा या फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। बट आई थिंक सारी टीमों के पास फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स अच्छे हैं, तो अगर क्वालिटी टीम में है तो विकेट्स फास्ट बॉलर्स भी लेंगे, स्पिनर्स भी लेंगे। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा, टाइम बताएगा कि पिच कैसी है, पिच कैसी खेल रही है, टीम क्या कॉम्बिनेशन खिला रही है, कितने स्पिनर्स खिला रहे हैं, कितने फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। बिल्कुल दोनों टीम में से शाहीन पाकिस्तान की टीम से नहीं है, हमारे टीम से बुमराह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी जो दोनों लेके आते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए वो ऑब्वियसली मिस होगा दोनों टीम के लिए। बट मेरा ये मानना है कि जो बाकी लड़के हैं दोनों टीम में, उनके भी टीम में हमारे भी टीम में, किसी और को मौका मिलेगा उस जगह पे खेलने का, तो आई होप कि वो जो भी मौका जिसको भी मिलता है वो मौका अपना अच्छा यूटिलाइज करेंगे। I mean, look, the mood in the camp is obviously buzzing. It's a fresh tournament, a new start, and that is something that we always talk about. When you start fresh, you need to start fresh, not to think about what has really happened in the past. And that's how teams move forward, and we are no different. We also want to move in the same direction. Of course, it'll be challenging to play against Pakistan without a doubt. But for us, what is important is what we are thinking as a group and what we want to achieve from this tournament. And taking one game at a time and all those kind of things will play a huge role. So we will focus on that rather than thinking about the opposition. For us, it is important we are here for a purpose, and we want to achieve something from this tournament, and we'll be focusing on that. And yeah, I mean, like I said, everyone's quite excited to be here, and they want to, start the tournament on a high. So yeah, everyone's looking forward to it. So far, I mean, we've not decided the playing 11. We want to see the pitch. We want to see today's game as well, because the game will be played on the same pitch tomorrow. That's what we were told. So yeah, we want to make the decision based on that. Yeah. पीसी सुनिए, अब आपको सुनाते हैं न्यूज इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिस्ट ने भी रोहित से सवाल किया। रोहित ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार को लेकर के जवाब दिया, क्या कुछ कहा सुनिए। I'd see whoever, all 15 are here, whichever 15 are here, they're pretty much in the mix of everything, and that's why they're here, because they've produced results, they have performed whenever they've gotten an opportunity. So everyone stands a chance to represent. We are not somebody who will close doors on individuals, and we don't want to do that. We want to see how individuals respond to certain situation that has been put by the team management to them, and we will see how they respond to that. So far, whatever we were expecting from the individuals, I think they have responded pretty well. So yeah, going forward, it's a big headache for us, leaving out certain players from the squad, from the playing 11. It's not easy, but as far as the team goes, we got to get the best combination and best playing 11. So whatever it takes for us to do that, we will do everything we can to get the best possible 11 all the time.
And yeah, like you said about Dinesh, yes, of course. Off late he's come out really well, and we know his quality. Even before he was dropped from the team, he played some crucial knocks for us. So keeping that in mind, what kind of role he plays for us, he was brought back into the team, and yeah, so far he's not disappointed us. रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सवाल पूछा था न्यूज इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट ने। आपने सुना कि आखिरकार वर्ल्ड कप 2021 को लेकर के क्या कुछ कहा है। अब बात करेंगे पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की, जिन्होंने कहा है भारत के खिलाफ मैच को लेकर के एक्साइटमेंट जाहिर की है। बाबर ने महामुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैटिंग और बॉलिंग पर भी बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है, पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। मेन चीज़ ये कि लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और हम भी एज अ प्लेयर एज अ टीम एंजॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये है कि हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। गेम है, इंजरीज होती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। जिस तरह वो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा बिलीव है मुझे उन पे, और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एज अ टीम हम अच्छी क्रिकेट खेलें। ऑन द डे हम कोशिश करेंगे अपना 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ। डेफिनेटली देखें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारा, और जैसे वो बॉलिंग करता है एग्रेशन के साथ और बॉलिंग को लीड करता है, तो वो बिल्कुल हम उसको मिस करें। देखें सर, अभी कंडीशन हमने देखी नहीं, मैच स्टेडियम में और स्टेडियम की अभी हमने कंडीशन देखी नहीं। आज के मैच से हम आइडिया लगाएंगे कि कैसा बिहेव करा विकेट और कैसा आपने प्लानिंग करनी है, तो वो जब आप जाके देखेंगे, मैच देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप डिसीजन ले सकेंगे। इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। ऑन द डे आप जाके देखते हैं सिचुएशन कैसी है, विकेट कैसी है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और उसमें देखें विकेट कैसा बिहेव करता है। हम इस हीट में खेले हुए हैं, इस गर्मी में खेले हुए हैं। डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर दिन डिफरेंट चीज़ आती है, तो उसके लिए हम रेडी हैं। और एशिया कप का आगाज आज से हुआ है। ऐसे में अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है। अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया कप से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में एशिया कप का पहला मुकाबला है श्रीलंका के साथ, और ऐसे में टॉस हो चुका है। अफगानिस्तान और श्रीलंका भिड़ने वाली है, जिसे लेकर के अब अफगानिस्तान ने ये टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी चुन ली है, यानी कि श्रीलंका बैटिंग करती हुई नजर आएगी। तो अफगानिस्तान ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर एशिया कप से जुड़ी हुई है, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है। आज पहला मैच है, आज से ही इस सीरीज का आगाज, और पहला मैच अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच में है। ऐसे में अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी को चुना है, यानी कि श्रीलंका अब बैटिंग करते हुए नजर आएगी। थोड़ी देर में ये मैच शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे मैच शुरू होने वाला है और उसके पहले ये टॉस। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रवीश बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही लतिका जी भी जुड़ी हुई हैं। रवीश, फैंस का जो कुछ कहना था वो भी हमने आप सुना कि आखिरकार वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोत्साहित नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर एक्साइटमेंट जो है वो यही कह रही है कि जीत कर जाएंगे, कप भी लेकर के जाएंगे, मैच बस की बात छोड़ दीजिए, और क्या कुछ कह रहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस यहाँ पे फैंस जो है वो, जैसे इंडिया की प्रैक्टिस दूसरी साइड चली है तो वहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए। ये आप आईसीसी क्रिकेट एकेडमी देख सकते हैं, जहाँ पे कि इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी तरफ ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने 3 दिन बहुत हार्डकोर प्रैक्टिस की, उसके बाद आज उनका ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रहा। मेरे साथ कुछ इंडिया के फैंस हैं, तो उनसे भी पूछते हैं। ये देखिए, बैट भी लेकर आए हैं। किसका बैट लेकर आए हैं? ये एसएस का मैंने लेके आया था, विराट कोहली की पनौती है ना, वो ख़त्म करने के लिए, मगर उसको आज मिला। पनौती? क्या पनौती? पनौती है ना, उसका बल्ला चल रहा नहीं है। अच्छा, वो एक्चुअली वो देंगे तो चल जाएगा। उसको मैं देने वाला था कि जाके मैं प्रैक्टिस कर उसके तो, लेकिन वो तो इस बार वो गोल्डन बैट यूज कर रहे हैं ना, गोल्डन बैट लेकर आए। यूज़ करें, बोले स्टिकर निकाल दे, गोल्डन लगा दे इस पे, और ये इससे प्रैक्टिस कर। ये क्या पूजा वूजा करके लाओ? पूजा नहीं, उसकी माँ की दुआ है, समझे इस पे। हाँ, उसको माँ की दुआ है, तो उसको देने के लिए था। वो बहुत परेशान है, उसका बल्ला चल रहा नहीं है। कल चलेगा? कल चलेगा, और के राहुल का भी चलेगा। आप क्या कहना? हाँ, वैसे ही सर, जैसे वो रेस्ट करके आए हैं, तो लगता है इस बार विराट कोहली पूरे दम से खेलेंगे, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन जो है इस बार सारा फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान मैच में निकलेगा। और इससे साथ 2018 का जो एशिया कप हुआ था, उसका डिवीज़न फिर इस बार होने वाला है 2018 में, क्योंकि हमने जितना, हमारे साथ कुछ और फैंस भी। आप क्या कहना चाह रहे हो? जी, बस यही कहना चाह रहा हूँ, बस इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जीतेगा।
और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान को मैच कौन जिताएगा इधर? इंशाल्लाह सारे प्लेयर जिताएंगे, लेकिन खास 2 ही प्लेयर होते हैं जो बॉलर है या फिर बैट्समैन। आपका कौन फेवरेट? मेरा बाबर था और शाहीन है। इन तो खेल नहीं रहा लेकिन। शाहीन की जगह भी दूसरा प्लेयर जो भी होता है इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीतेगा, पिछली बार भी जीता था, कल भी इंशाल्लाह जीत। नया मैच है, कैसे वो कैसे? मौसम बदलित होता है पर इसलिए ये पाकिस्तान के लिए मौसम सही है। सही मौसम। ये तो कह रहे पाकिस्तान के लिए मौसम सही है। पाकिस्तान भाई हमेशा किसकी टीवी ज़्यादा टूटती है? पाकिस्तान हाँ, तभी समझो अगर कल बल्ला चल गया तो वही विराट कोहली का बल्ला लेके टीवी टूट जाएगी। तो मेरे को कॉल आएगा देखना कल, भाई तुमने सही बोला था। पाकिस्तान का बल्ला चलेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद इंशाल्लाह रवीश, बाबर साहब कहीं ना चलेगा, कहीं यहाँ मोहम्मद पर जो- रिजवान साहब भी चलेगा। तीसरा नाम भी तो बताया यार। फखर जमान किधर गया? रवीश, यहाँ पर जी। जो कहीं ना कहीं यादें हैं वो 2021 के वर्ल्ड कप पर ही जाकर के टिक जाती है पाकिस्तानी फैंस की। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से 2021 में मैच जीता था हम फिर से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तैयारियों में, खिलाड़ियों में, प्रदर्शन में कुछ तो बदलाव होगा, जिसके भरोसे इंडियन फैंस भी कह रहे हैं नहीं, इस बार टीवी टूटने की जो बारी है वो पाकिस्तान की है। देखिए, जो अगर ऑन सीरियस नोट अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें, फैंस के तो अपने इमोशंस होते हैं, तो वो अपने इमोशंस के हिसाब से बात करते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बट अगर आप देखें दोनों टीमों के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक यंग साइड है। पिछली बार उन्होंने सरप्राइज किया डेफिनेटली इंडिया को, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने, बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी थी, शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी थी। बट ऑन द अदर एंड अगर आप देखें तो इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। राइट फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें रोहित है, विराट। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास ऑन पेपर से स्ट्रॉन्ग साइड है या पाकिस्तान के पास ऑन पेपर इनएक्सपीरियंस साइड है। सवाल ये है कि इनफॉर्म टीम कौन सी है। इंडिया डेफिनेटली मैचेस जीतती हुई आ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत चेंजेस भी किए हैं। और हमारा जो टॉप 3 है उसके बारे में इंडिया को सोचना होगा कि जैसे रोहित ने इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है उनकी, या विराट की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है, केएल ने जिम्बाब्वे दौरे में सिर्फ 2 मैचेस खेले, वो इतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। तो आपके टॉप 3 में से कौन चलेगा? 2020 क्रिकेट एक छोटा गेम है, वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ऑन द अदर एंड अगर आप बॉलिंग की भी बात करें तो देखो हमारे पास यूजी है, जडेजा है, अश्विन भी है। स्पिन अगर देखते हैं आज अभी मुकाबले में पता लगेगा, तब पता लगेगा कि सेम पिच पे ही मैच हो रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भी जिसमें आज मैच हो रहा है, फर्स्ट मैच हो रहा है जो एशिया कप का, फिर पता लगेगा कि स्पिनर्स का बोलबाला रहता है या फिर फास्ट बॉलर्स का बोलबाला रहता है। ऑन पेपर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया के पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑन पेपर से हटकर भी देखना होगा कि आखिरकार कौन किस तरीके से खेलता है, कौन किस तरीके से फॉर्म में रहता है। लेकिन सवाल लगातार विराट कोहली की फॉर्म को लेकर के उठ रहे थे लतिका जी, लेकिन अब जब वो सामने आए हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं मैं भी तैयार हूँ, फैंस भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी जता रहे हैं कि नहीं इस बार जीतेंगे। और आपने सुना कि आखिरकार जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान के, शादाब खान, सीधे तौर पर ये कह गए बहुत अच्छा खेलते हैं विराट कोहली, उनका बल्ला भी खूब चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे खिलाफ इस बार चले। देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर हो उसके खिलाफ इस तरह से कह सकते हैं कि डर लगता है कि अगर वो आपके अगेंस्ट में खेल रहा है तो कहीं यहाँ रन्स ना बना दे, क्योंकि विराट कोहली की जो छवि रही है हमेशा एक जुझारू प्लेयर की तरह रही है। और उन्होंने हमेशा अपने आप को साबित भी किया है, चाहे वो चेजिंग करते हुए हो, चाहे रन सेट करते हुए हो। जब भी भारतीय टीम एक मुसीबत के दौर से गुजरी है उस टाइम पे विराट कोहली की परफॉर्मेंस आई है। और मीनाक्षी, ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है विराट कोहली में। और देखिए, अभी भी उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है चीज़ों को कुछ लेके कि मेंटली वो इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ऐसा दौर प्लेयर के सामने आता है जहाँ वो इस दौर से भी गुजरता है, जहाँ पे वो मेंटली थोड़ा सा डिसहार्टेड दिखता है या फिर कंसंट्रेशन नहीं होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर आके अब ये देखना होगा कि कल के मैच में किस तरह से। और रवीश की एक बात मुझे सही लगी कि आपके जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के, केएल राहुल है, और हमने कल भी बात की थी, केएल राहुल है, विराट कोहली है, कि ये किस तरीके से यहाँ पर बैटिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत रिस्की है इस टाइम पे, क्योंकि विराट कोहली को हम देख रहे हैं रन्स जरूर बना रहे हैं लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं आई है। तो ये देखना होगा कि वो रन्स कितनी बॉल्स में लेकर आते हैं। और जो अभी एक मोमेंटम चेंज किया है इंडियन टीम ने, जो एक इंटेंट दिखाया है अपनी बल्लेबाजी में कि हम ऑल आउट जाएंगे, बैटिंग जब हम करेंगे तो ऑल आउट जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे पावर प्ले में भी, और उस जो रन रेट है उसको हम मेंटेन करेंगे आखिरी 20 ओवर तक। तो एक ये नई चीज़ जो इंक्लूड हुई है भारतीय बल्लेबाजी में, वो देखना होगा कि किस रोल के हिसाब से विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं। अगर उनके पास रोल है कि आपको इतने ओवर्स में हमें इतने रन चाहिए, तो हो सकता है कि जल्दी उनकी विकेट चली जाए। लेकिन तो रवीश से भी यहाँ पर यही सवाल बनेगा मेरा कि रवीश, आप दर्शकों को ये भी समझाएं, क्योंकि ये
मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है, लेकिन जो सबकी निगाहें हैं वो यहाँ पर इस चीज को लेकर के टिकी हुई है कि आखिरकार कल परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है विराट कोहली की, वो किस तरीके से फॉर्म में आने वाले हैं। लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं, क्रिटिक्स भी लगातार ये कह रहे थे कि अभी उन्हें फिलहाल एक ब्रेक की जरूरत है, और जब वो ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो क्या वो उस फॉर्म को मेंटेन कर पाएंगे जिसकी उम्मीद सबको यहाँ पर उनसे कर रहा है। देखिए कल जब प्रैक्टिस सेशन हुआ था तो एक अनयूजुअल मैं कहूंगा कि मैंने जनरली ऐसा देखा नहीं है टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में कि विराट और रोहित एक ही नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे ऑल्टरनेट। यही मैंने सवाल भी पूछा था रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे बैटिंग कोच है उन्होंने ऐसा स्केड्यूल बनाया था। तो मैंने उनसे अगला सवाल यही पूछा था कि फिर विराट आपको कैसे टच में नजर आए, क्योंकि वो एक ही नेट पे दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। तो रोहित शर्मा ने कहा कि बहुत अच्छे मुझे टच में वो नजर आए, जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे, जिस तरीके से उनकी प्लेसमेंट थी वो बहुत बेहतरीन थी, और उनको लग नहीं रहा था कि किसी वो आउट ऑफ फॉर्म है या किसी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल लग रहे थे और बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। अब ये विराट कोहली का जो क्वेश्चन है ये इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आपको अक्टूबर में जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ये एशिया कप तो एक तरीके का कह सकते हैं कि चलिए ये तो अभी 2 महीने के बाद क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है तो ये एशिया कप यहाँ पे होगा, इसका जो भी परिणाम होगा लोग भूल के वर्ल्ड कप पे आ जाएंगे। और वहां के लिए आपके पास नंबर 3 बैट्समैन अभी तक वर्ल्ड का कौन रहा है? विराट कोहली। इतने सालों तक 8-10 सालों तक नंबर 3 पे आपका बेस्ट बैटर कौन था? विराट कोहली। अब अगर वो फॉर्म में नहीं है तो आप कंटेंटर देखिए, लोग कहते हैं सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 खिलाइए, दीपक हुड्डा को नंबर 3 खिलाकर लाइए। तो ये जो एशिया कप है ना बेसिकली ये आपका टेस्टिंग टाइम है फॉर द वर्ल्ड कप्स, जो कि अक्टूबर में शुरू हो रहा है। और यहाँ अगर विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले तो फिर सवाल बहुत निकलेंगे, और उन सवालों का जवाब देने के लिए सेलेक्टर्स हो गए, BCCI हो गई, खुद विराट कोहली हो गए, सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इस टूर्नामेंट में रन आए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा सबसे बड़ा जो प्लेयर रहा है इतने सालों से, ये फिर वर्ल्ड कप पे जाके भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। यहाँ रन नहीं आए तो फिर सवाल उठने लगेंगे कि भाई वर्ल्ड कप पे कैसे लेकर जा रहे हो, या वर्ल्ड कप की कैंपेन को भी उससे धक्का लगेगा बड़ा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सबकी नजरें भी कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस मैच का जो परिणाम होगा वो आगे आने वाले मैचेस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने वाला है। लतिका जी, लेकिन हम जितने भी पुराने मैचेस को देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मैचेस हुए हैं, अभी भी भारत की जो लिस्ट है ऊपर है, भारत ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो ऐसे में कल अपनी तैयारी के हिसाब से इस लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे या फिर यहाँ पे बराबरी होने वाली है? देखिए मीनाक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस भारतीय टीम के पास है उसके हिसाब से तो अपर हैंड है ही, लेकिन पाकिस्तान के पास भी सरप्राइजिंग पैकेजेस हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरनेशनल खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं, इतना खेला नहीं है, इतना उनको देखा नहीं गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी अगर गेंदबाजी को खेलते हैं पाकिस्तानी तो उनको देख के खेलना होगा कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी लेते हैं, क्योंकि आपने उससे पहले उनको खेला नहीं है। कुछ 1-2 ही प्लेयर हैं जिनको वो उन्होंने खेला है। और यहाँ ये भी चीज़ है मीनाक्षी कि किस तरीके से हमारे गेंदबाज, क्योंकि देखिए मेन गेंदबाज हमारे पास भी नहीं है, बुमराह नहीं है, हर्षल पटेल नहीं है जो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो हमारे गेंदबाज किस तरह से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नज़र होगी भुवनेश्वर कुमार और चहल पे कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि हमारे पास विकेट टेकिंग सरप्राइज जो पैकेजेस हैं उस पर भी कहीं ना कहीं नजर टिकी रहने वाली है और उन पर भी सेलेक्टर्स का पूरा ना पूरा ध्यान होगा आगे आने वाले मैचेस को लेकर के। बिल्कुल। और जैसे कि रवीश ने कहा कि ये जो एशिया कप है ये एक तरीके से प्रैक्टिस मैचेस समझ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि देखिए एशियन कंट्री आपके सामने खेल रही हैं, यहीं पर 6 टीमें आपके साथ खेल रही हैं, उसके बाद जो यूरोपियन कंट्री वो भी जुड़ेंगी आपके साथ। तो ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले एक रिहर्सल के तौर पे एशिया कप को देखा जा मैच सकता मानने है। से वार्म अप नहीं, रिहर्सल मैचेस कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी टीम में जो अभी तक इतने एक्सपेरिमेंट आप करते हुए आए हैं पिछले कुछ 10 महीनों में, तो ये देखना होगा कि आपके जो बैटिंग जो नंबर्स हैं वो सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ जिनसे उम्मीद लगा रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, कि वो परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या वो वर्ल्ड कप के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जितने भी सवाल है सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं कुछ हद तक कल तो मिल ही जाएंगे लतिका जी। लेकिन इस वक्त दुबई में हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मौजूद हैं, रवीश आपके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, फैंस हैं, लगातार आप फैंस से बातचीत भी कर रहे हैं। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो छूट गया है उनकी तरफ से भी अभी? चलिए पूछ लेते हैं उनसे। मेरे साथ फैंस हैं, इंडिया के फैंस हैं, पाकिस्तान के फैंस तो चले गए दूसरी जगह पे देखिए वहाँ पर, और इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन कल आपको लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, आपको क्या लग रहा है इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, बैटिंग बॉलिंग जिससे भी आप सोचें? ऑलराउंडर की बात करें तो ज़्यादातर पहले तो रोहित शर्मा जी रहे हुए, इस बारी अभी देखते हैं किसकी मेहनत की। आपको किस पे मेरे को तो यकीन है तो रोहित शर्मा की बात करें तो
हेडमैन। आपको क्या लगता है? सर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली बचाते हैं और कोई नहीं। लास्ट टाइम ही हम लोग देखा था पाकिस्तान में जब गए हम लोग हार गए, लेकिन विराट कोहली ने बचाया था। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बॉलिंग में दिस टाइम हर्षदीप सिंह वो कुछ करके जाएंगे सर। अच्छा, अगर उनको मिलता, आपका क्या कहना है? आप तो बैट लेके घूम रहे हैं विराट कोहली के लिए, उधर कैमरे की। इंडिया की बैटिंग लाइन बेस्ट बैटिंग लाइन है ओपनिंग से, और सूर्य कुमार यादव वो ऐसा खिलाड़ी है और फिनिशर भी है, और पता है कितने मैच जिताया भी उसने। कोलकाता के साथ खेला हुआ है, मुंबई के साथ खेला हुआ है, और अपना मेन खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अगर वो चल गया तो लास्ट टाइम पे जो 92 कुछ खेला था, रनआउट हो गया था गुस्से में, तो उसने जो खेला गेम, अगर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार और ये अपना रोहित भाई ये चल गया ना, रोहित को प्रेशर तो है ही नहीं उतना, अगर वो चल गया तो लेफ्ट हैंड से उसको प्रॉब्लम होती थी। शाइन नहीं है इसलिए वो शाइन भी नहीं है, और वो लेफ्टी से बहुत बार देखा मैंने, और बहुत मेरे को भी हालत खराब हो गई है रोहित को देखते हुए। जो क्रॉस रवीश, जो फैंस का उत्साह है जी, रवीश क्यों हालत का बल्ला असल में बोलो पाकिस्तान के खिलाफ चला नहीं है। हाँ, कल का जो सूरज निकलेगा बिल्कुल रवीश, देखिए फैंस का जो उत्साह है वो लगातार इसी तरीके से रहने वाला है, कल भी इसी तरीके से उत्साह देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल ये झंडा लेकर के इस तरीके से पहुंचे हुए हैं और फहराने की पूरी तैयारी। बिल्कुल, मेरे को उम्मीद हमारी ओपनिंग स्टार्ट बढ़िया होनी चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये सबसे आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ भी चल रहा है, मतलब बिल्कुल चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा बना हुआ है, एक क्या कहते हैं कि फेस्टिवल होता है, जो एशिया कप का फेस्टिवल है, जो आईसीसी का जो बिल्कुल रवीश, देखिए कहीं ना कहीं फैंस के जो दिल में इच्छाएं हैं वो यही है। वर्ल्ड कप जी रवीश, फैंस के दिल में इच्छाएं यही है कि कल भारत पाकिस्तान का जब मैच हो तो यहाँ तो जीते ही, साथ ही हम एशिया कप भी अपने साथ लेकर के जाए। देखिए वक्त कम रह गया है, कल फिर से मुलाकात होगी, आप लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और अपडेट भी दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। कल फिर से क्लीन बोल्ड में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार जो मैच होने वाला है, जिसकी तैयारी आज से ही फैंस करने लगे हैं, वहाँ टीमें तो कर ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर फैंस भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें कल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब एशिया कप से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भारत को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। के लिए, और मैं कभी उस क्षण को नहीं भूल सकती जब इंडिया जीती। जितने भी हम नेता थे, चाहे बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, जो भी गया था मैच देखने के लिए, सब इतने खुश हुए कि कूदने लग गए खुशी से। 28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है। पूरे देश की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, जी जान से खेलिए और जीत के आइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा काफी एक्साइटेड हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के हीरो रहे जोगिंदर ने भारत की जीत का दावा किया है और भारतीय टीम को पाकिस्तानी टीम से बेहतर बताया है। सुनिए। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और मेरे को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की क्या महत्व रहता है, और इसमें पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड रहता है इस मैच को देखने के लिए। तो बड़ा अच्छा मैच रहेगा और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रही है और टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर तरीके से पूरी परिपूर्ण है और अच्छा रहेगा इंडिया के लिए भी। पूरा टूर्नामेंट भी अच्छा रहेगा और कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए भारत पाकिस्तान का मैच हो लतिका जी तो सारे काम लोग छोड़ करके सिर्फ मैच देखना पसंद करते हैं। फिलहाल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 6 बजे अपनी टीवी ट्यून इन करिएगा क्योंकि कल क्लीन बोल्ड 6 बजे से शुरू होगा और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मैच में क्या कुछ होने वाला है। सारी अपडेट देंगे न्यूज़ इंडिया पर सिर्फ क्लीन बोल्ड में। फिलहाल इतना ही।